ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਧ। ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਕੀ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹੈ, ਅਰਥ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਦ ਵੰਡ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੰਡ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਗਤ ਅਤੇ ਵਿਆਕਰਣਿਕ। ਬਣਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੂਲ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਰਚਿਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਤਸਮ, ਤਦਭਵ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਤਪੱਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸੋ। ਰੂਪ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ। ਵਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਕਰਤਾ, ਘਰੀਂ ਕਰਤਾ, ਘਰੋਂ, ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ, ਮੁੰਡਿਆ, ਓਏ ਮੁੰਡੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਸ 'ਚ ਫਰਕ ਆਵੇ, ਵਿਕਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਵਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਆਈ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਨਿਰਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਥਕ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਾਰਥਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਬਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਪੂਣੀ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ, ਕੁਪੜਾ, ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ? ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ, ਵਸਤੂ, ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਨਾਂਵ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਕ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨੂੰ? 565, 28, 329। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 5-10 ਵਾਰੀ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ? ਤਾਂ 5 ਨਾਂਵ ਦੇ ਭੇਦ ਹਨ, 6 ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ ਦੇ, 5 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ, 2 ਕਿਰਿਆ ਦੇ, 8 ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, 8 ਸੰਬੰਧਕ, 2 ਯੋਜਕ ਅਤੇ 9 ਵਿਸਮਕ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੋ ਨਾਂਵ, ਪੜ੍ਹਨਾਂਵ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਕਿਰਿਆ, ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸੰਬੰਧਕ, ਯੋਜਕ, ਵਿਸਮਕ। 565, 28, 329 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ 565, 28, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸਮਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਆਲਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਚੱਕਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਾ ਧੋਣ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਂਵ ਦੀ। ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਾਂਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਜੀਵ, ਚੀਜ਼, ਵਸਤੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਂਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮੇਜ਼, ਦਿੱਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਨਾਂਵ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅਰਥ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਂਵ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਅੱਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ 5 ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਖਾਸ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਆਮ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ, ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਸਮੂਹ, ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਹੈ ਭਾਵਵਾਚਕ। ਇਹ 5 ਦੇ 5 ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਖਾ ਜਾਂ ਆ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਨਾਂਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੀਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ, ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਿਣਨਯੋਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕੋ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਜਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ, ਕੁਰਸੀ, ਪੈਨ, ਮਨੁੱਖ, ਤੀਵੀਂ। ਤੀਵੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ। ਨਦੀ, ਭੂਚਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂ ਮਿਣਿਆ, ਉੱਪਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਮਿਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਆਟਾ, ਰੇਤ, ਲੋਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗਿਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੋਲਿਆ, ਮਿਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਕੱਠਵਾਚਕ। ਇਕੱਠ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਭਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ, ਫੌਜ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਪੇ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਟੀਮ, ਜਲੂਸ, ਆਤਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੇਲਾ, ਤ੍ਰਿੰਜਣ।
तो ये सारे वर्ड तुसीं याद रखने। भाववाचक जिस तो कोई भाव पता लगे, जिन्हां तो किसी गुण का पता लगे या किसी अवगुण का पता लगे, जिन्हों छूया ना जा सके। देखो पहले गिणन की गल आ गई सी, फिर मिणन की, हुण छू नहीं सकते। जिवें खुशी गमी, कुड़त्तण, अमीरी गरीबी, इन्हूं तुसीं छू नहीं सकते। सोच सच झूठ। नाव का रूपांतरण 3 प्रकार नाल कर सकते हो। हुण नाव का रूपांतरण किवें होएगा? या तो उनका तुसीं लिंग बदल सकते हो, या वचन, या फिर कारक बदल सकते हो। हुण इस 'च लिंग का जे नाम आ गया तो देख ही लईए कि लिंग है कि ਉਹੀ गल कि आप पढ़िया होया, लेकिन इनू फिर भी पढ़ना जरूरी है। कई बारी लिंग वो जिहड़ा पुरुष या इस्त्री का तुहानूं भेद दस्से, ठीक है, इनू लिंग कहा जाता है। जिवें मुंडा कुड़ी, शेर शेरनी, ये सब लिंग है। हुण लिंग के किन्ने भेद है तो तुहानूं आपे ही पता होने चाहिए कि लिंग के 2 भेद है, पहला पुलिंग तो फिर इस्त्रीलिंग। ये नाव दे नाल पाउण दा रीजन ही है कि तुहानूं इत्थे हुण चेंज पता लगेगा। पुलिंग वो है जिहड़ा मर्दावां या मर्द रूप नूं शो करे, ठीक है, जिवें प्यो पुत्तर घोड़ा। इस्त्री वो लिंग है जिहड़े इस्त्री दे रिलेटेबल होण, ठीक है, जिवें घोड़ी, माँ, धी। पंजाबी विच बेजान चीज़ां नूं भी लिंग वंड दित्ती गई है, ठीक है, जिवें सूतड़ी, हट्टी, बाणी, चरखी। तां ये सारे आपे लिंगां दे रूप हैं। हुण लिंगां रूप जिहड़े भी लिंग है, इन्हां दे रूपां दी पछाण किवें हुंदी है? तां नाव करके इन्हां दी पछाण हुंदी है। जिवें कि पंजाबी विच नाव नूं पुल्लिंग अते जिवें नाव मदीना नूं इस्त्रीलिंग कहा जाता है। ये याद रखियो, नाव नरा है वो पुल्लिंग है, नाव मदीना जिहड़ी है वो की है? इस्त्रीलिंग है, ठीक है। जिवें बकरी, राणी, चिड़ी, ये सारे इस्त्रीलिंग है। राजा हो गया, ये पुल्लिंग हो गया। पर नाव जिस ते कन्ने की मात्रा आ जाए, ठीक है, तो उन्होंने किस चेंज कर दिता जाता है? बिहारी विच। किवें? जिवें मेरी केड़ी, तेरी जेड़ी, ये इस्त्रीलिंग बन गए। तेरा जेड़ा, ये पुल्लिंग। विशेषण करके इहदे विच की हुंदा? कन्ना हुंदा, वो पुल्लिंग हुंदा, ते जिस इहदा उल्टा कर दिंदे या उन्होंने थोड़ा चेंज करन दे, ठीक है। वैसे तो आप लिंग पुलिंग पढ़ते ही नहीं, आपको पता है, आपको आपे ही आ जाना है ना। जिवें हुण इत्थे देखो कि जिवें लाल इस्त्री, क्योंकि वरतदी इस्त्री लिंग है लाल दरवाजा, ठीक है। देखो लाल इस्त्री, लाल दरवाजा, लाल पुलिंग है क्योंकि दरवाजा पुलिंग है। लाल इस्त्री क्योंकि इस्त्री पुलिंग है, ठीक है। लाल वर्दी हो सकता है, इत्थे कोई भी वर्ड हो सकता है। तो तुसीं आपे लिंग नूं चेंज करता। क्रिया करके, हुण क्रिया आपां नूं पता है 2 तरह की क्रिया होंदी है, ठीक है। पर नावां वांग ही जे क्रिया दे अंत विच कन्ना होवेगा तो वो पुल्लिंग हुंदा है, पर जे अंत विच बिहारी होएगी तो वो की हुंदा है? इस्त्रीलिंग हुंदा है। उदाहरण लई धुप निकली विच धुप की है? इस्त्रीलिंग है। अते निकली की हुंदी? क्रिया दिखा रही है। चंद्रमा चढ़दा है ना, सूरज चंदा मामा कहने आपां, तो वो की हो गया? पुल्लिंग हो गया। लिंग बदली के कुछ अपने मुख नियम हैं, वो नियमां करके भी तुसीं पढ़ सकते हो, नहीं तो एक बारी अखां चों जरूर कड्डियो, ठीक है। अंत विच जिंदे बिहारी इणी नी ला के इनू चेंज कर दिता जाता है। किवें? पुलिंग है जिवें, ये सारे आपां पढ़ांगे, कोई भी चीज़ स्किप ना करिया करो, क्लिक कर जाएगी उत्थे माइंड ते, फिर याद रहेगी। हरन हरनी, तरखान तरखाणी। हुण इत्थे अणाणा आणे याद रखियो। दास दासी, पठान पठाणी, संग संगी, टल टली, छत्तर छतरी, छप्पड़ छपड़ी, गुज्जर गुजरी, नट नटी, मुख मुखी, चंद चंदी, चियोर चियोरी, थाल थाली, खूह खूही। नी वधा के भी कर सकते हो, जिवें फकीर फकीरनी, जत्थेदार जत्थेदारनी। हुण देखो इत्थे नन्ना आया है, जत्थेदार नी कीता, ना कि अणी कीता, तो ये भी गल याद रखियो। बाजीगर बाजीगरनी, चकोर चकोरनी। हुण कन्ना हटा के किवें होएगा? संडा संड, गंडा गंड, रंडा रंड। तो एक ही करता इन्होंने लिंग परिवर्तन। हुण अणी नाल की है? भील भीलणी हो गया, ठीक है। सिख सिखणी हो गया। ये जिहड़ा तुसीं सामने देख रहे हो, थोड़ा ध्यान नाल देखियो। जिवें सराफ दा सराफणी करता, पंड दा पंडणी करता, कुड़म दा कुड़मणी, शाह शाहणी, उठ उठणी, ऐ करके तुसीं इणी लाता। हुण कन्ना वधा के किवें होएगा? नायक नायिका, उपदेशक उपदेशका। कई बार ये छोटी ईदी यानी कि सिहारी की मात्रा दे देंगे ऑप्शन च, आपां फिर भुल जाने कि हुण किहड़ा है, उपदेशका या उपदेशिका। लेखक लेखिका, अध्यापक अध्यापका, पाठक पाठका। कन्ना ते अणी लगा वधा के दोनों आ गया इस बार। कुठियारा तो कुठियारन, पटियारा तो पटियारन, कसेरा कसेरन, लुटेरन लुटेरन, ऐ करके बहुत सारे नाम है जिन्होंने इन्होंने चेंज करता। जे पुलिंग के अंत विच बिहारी जिवें आ जाए तो कन्ना आ जाए, ठीक है, आदि मात्रा आ जाए, तो उन्होंने किवें करना? जिवें दुआबिया तो दुआबियाना आ गया, बिहारी भी आ गई, आ भी आ गया, आ वाला पूरा वर्ड आ गया। पोठोहारिया पोठोहारन आ गया, पशोरिया तो पशोरन आ गया, पूर्बिया तो पूर्बन आ गया। देखो इया बिया बिया ये पिछे आ रहे। बिहारी ला के किवें होएगा? जिवें कि चट्टा झोटा झोटी, पठोरा पठोरी, वच्छा वच्छी,
ठीक है। बिहारी की थां ते नन्ना ला के पटवारी पटवारन, पुजारी पुजारन, खिडारी खिडारन ते लिखारी लिखारन हो गया। हुण अण ते नन्ना ये तुसीं ध्यान रखना है। कई बारी बिना किसी नेम दे लिंग की बदली की जाती है, मतलब कोई नियम नहीं है इत्थे, ठीक है। जिवें कवि कवित्री हो गया, ई दी मात्रा उधर लाती। खसम दा रन हो गया बिल्कुल ही अपोजिट। लाड़ा वोटी, दिओ परी, उल्लू बतौरी, नवाब बेगम, सोहरा सस, छोटा मझ, हार माला, वर कन्या, भूत चुड़ैल, जवाई धी, भेडू भेड़, है ना। ये सारे जिहड़े वर्ड है तुसीं याद रखने। पातशाह मलका, खसम रन ते मुटियार मुटियारन, संडा संड, जठौरी जिठ जिट्ठी, बापू अक्खा। ये जिहड़ा नवाब बेगम है ये तो आया भी सी 23 तरीक के शामी वाले पेपर लैंगुएज सैकेंड दे विच पंजाबी दे। तो तुसीं थोड़ा ध्यान रखो, ये जिहड़ा जुलाई च होया। दिदहोरा दिदेहस, हार माला, मर्द तीवी, मित्र सहेली, जिठोर जिट्ठी, टट्टू टैर, भेड़ भेड़, भेडू भेड़, गबरू मुटियार, बलद साहन या गां कहते गऊ, वर कन्या, फफ्योरा फफेहस, ददियोरा ददेहस। ये कहता। हुण कई पुलिंग जिहड़े नाम है वो इस्त्री लिंग विच भी बदले जाते हैं, ठीक है। हरेक नूं तुसीं चंगी तरह करना। ननेहोरा ननेहस उत्ते साइड च रह गया सी। किवें निनाण निनाणवैया कह देंगे, फुफ्फी या भूआ नूं फुफ्फड़, भैन या भणवैया, मासी या मासड़, ठीक है। इसी तरह जदों दुलैंकड़ आ जाए यानी कि वड्डे ऊ दी मात्रा आ जाए तो उन्होंने अणी च चेंज करते। जिवें काऊ काउणी, पेंडू पेंडुणी, हिंदू हिंदवाणी, इत्थे वाणी आ गया याद रखियो, ते पेंडू पेंडुआणी आ गया, ठीक है। हुण लिंग का एक होर रूप है जिहड़ा इत्थे थोड़ा तुसीं ध्यान नाल देखियो। जिवें ई दी मात्रा हटा देंगे, ठीक है। सिप्पी सिप, घड़ी घड़ा, संदूकड़ी, जिहड़ी छोटी ई दी मात्रा लगेगी यानी कि वो हमेशा स्त्रीलिंग है। रोटी रट, पतीली पतीला, पीड़ा पीड़ी, तक्कड़ी इत्थे तक्कड़ लिख रहे, छुरी छुरा, कोला कोली, ऐ करके सारे जिहड़े वर्ड है, ठीक है, ये तुसीं याद रखना। जिवें चाह दा चाहना करता। कुछ होर पुलिंग देख लैंदे आ, ये कुछ आखिरी रह गए पुलिंग, बस 2 मिनट की होर वीडियो है। पंजाबी विच कई शब्द जिहड़े वो केवल पुलिंग ही होंदे, जिवें सूरज, क्रोध, घ्यो, तेल, दुध, प्यार, भुचाल, मींह, चंद, दिल, आकाश, ये सारे सिर्फ और सिर्फ की है पुलिंग। या कई के होणगे सिर्फ स्त्रीलिंग। हुण वो स्त्रीलिंग किहड़े होणगे? अग, इट, शांति, हवा, कंध, बहादुरी, रेत, किरण, कंध, मिठास। ये तुसीं उत्थे बोल के ही देखने कि किस नाल ई दी मात्रा लग रही किसी सेंटेंस च पा के। कई बारी जानवरां, पंछियां, कीड़ियां वगैरह मकोड़ियां दे नाम जिहड़े है वो भी पुछ लैंदे। तां पुलिंग च किहड़े है? जिवें सहिया, गैंडा, खटमल, बगला, चीता, बटेरा, बाज। तां ये जिहड़ा सहिया है याद रखियो पुलिंग है। स्त्रीलिंग इल, कोयल, घुग्गी, बतख, गुटार, जूं, सगल, जोंक। पंजाबी विच हुण कुछ होर स्त्रीलिंग जिवें शाल, सरफ, ये जिहड़े आपां पाने कपड़े उन्हां तों। हुण छल जिहड़ा है, छल कपड़, कई सेम वर्ड दिखते ना। हुण जिवें छल आ गया जिंदा मतलब है धोखा, वो पुलिंग है। लेकिन छल जिवें पानी दा उछाल, छाल आ गया है ना, पानी दी लहर, वो स्त्रीलिंग है। पत्त जिहड़ा है वो पुलिंग है क्योंकि पत्तर की गल हो रही है। लेकिन एक होर पत्त यानी कि जिन्हों लाज इज्जत रख कह दिंने आ तो वो स्त्रीलिंग है। बाण जिहड़ा वो तीर होंदा है, लेकिन कई एक बाण जिहड़ी होंदी है भैड़ी आदत है तो वो स्त्रीलिंग हो गया। जिवें हुण मत है तो वो मजहब भी हो सकता है, धर्म भी, तो वो पुलिंग हो गया। लेकिन मत किसी की अक्ल नूं कहना तो वो तेरी तो मत फिर गई है कहने आप। वल हो गया, जिवें जांच आना तरीका, कोई वल आ गया तो एक वल स्त्रीलिंग भी होंदी है जिन्होंने वेल कहते हैं। ये सी अपनी ये वीडियो प्लीज़ शेयर सबसक्राइब जरूर करते जाइए। थैंक यू सो मच हुण तक देखने लिए। एग्जाम जी चैनल तुहाडा अपना चैनल, प्लीज़ सबसक्राइब कर दो। थैंक यू।